All right. Good morning, everyone. A very warm welcome to our guest speaker, Sri Surya Kant Sharma, and all the participants present here. My name is Preeti Sharma, and I welcome all of you on behalf of Divine Bliss Foundation in association with Association of Mutual Funds in India, AMFI, to our today's topic, financial empowerment and career opportunities in financial and securities market. With this, I welcome Sri Suryakant Sharma, a commerce graduate and Masters in Law. Hello, can you hear me? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Please continue, ma'am. Okay. Should I start from the beginning? Yes, Or ma'am. was Yes, ma'am. it? Okay, remember. Please start beginning. Please start, ma'am. Okay. All right. Good morning, everyone. A very warm welcome to our today's guest speaker, Sri Suryakant Sharma, and all the participants present here. My name is Preeti Sharma, and I welcome all of you on behalf of Divine Bliss Foundation in collaboration with Association of Mutual Funds in India, AMFI, to our today's national webinar on financial empowerment and career opportunities in financial and securities market. With this, I would like to welcome Sri Suryakant Sharma, a commerce graduate and masters in law with specialization in corporate laws. He is also a chartered associate of Indian Institute of Banking and Finance. Sri Suryakant Sharma joined Securities and Exchange Board of India (SEBI) in 2003 and served there for more than 15 years as served in different departments of SEBI. Lastly, in addition to other assignments, he was DGM in charge of Office of Investor Awareness and Education in SEBI's Northern Region for more than 5 years. I request Sri Suryakant Sharma to take over the mic. Thank you, Preeti. Thank you very much. Am I audible to all of you? Yes, sir, you are audible. Thank you. I would first like to have some idea about what your foundation is, what you are doing, and what are the nature of participants. Okay, Divine Bliss Foundation is a very religious, as you can see from our logo, it is Seva, Satsang, and Sadhana. We work in naturopathy, yoga, meditation, Reiki, and we are into health and healing of the public. Okay, thank you very much. Can I know the level of participants? Who are they? Are they students? Are they general public? Are they earners? Who are they? It is a mixture of everything. Like there are few are students, few are earner, few are office worker because they come to our sessions for stress relief, etc. So it is a mixture of everything. Okay, thank you. Thank you, Preeti. Thank you giving me the idea. Basically, I wanted to know how I should modulate my session because it should be complementary and useful to all the participants. So first thing I want to mention here that this program is from Association of Mutual Funds in India, AMFI, but it is not a marketing event or a promotional event of mutual funds. I want to make it very clear. It is purely an investor awareness program. And there are two categories of investors, Preeti, you will appreciate. First category is that those who are already earning. Should I speak in Hindi only or English only or mix? So you can speak in whatever language you're comfortable. You can No, I am comfortable. I want you people to be comfortable. That is why I am asking you. You can speak in mixture, Hindi and English. Hindi, they will understand? Yes, yes, sir. Okay, great, great, great. Thank you. Then I will mix it. Yes, sir, sure. First of all, I am thankful to all of you
And there are two categories of investor. One, those who are already earning. एक वो कैटेगरी आप में से है जो पैसा कमा रही हैं, चाहे वो जॉब कर रहे हैं, चाहे वो बिजनेस कर रहे हैं, चाहे वो प्रोफेशन में है। एक और कैटेगरी है जो अभी स्टूडेंट हैं, कहीं पैसा नहीं कमा रहे हैं, लेकिन वो बहुत जल्दी पैसा कमाने वाले हैं। तो I would like to focus my session on both the categories of investors. And secondly, this program is for all the participants. मैं एक बात और कहना चाहता हूं, आज का कार्यक्रम केवल आपके लिए है। आज का प्रोग्राम किसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए नहीं है, ये म्यूचुअल फंड की मार्केटिंग इवेंट नहीं है, और ये किसी भी प्रोडक्ट का मार्केटिंग नहीं है। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि आज का प्रोग्राम केवल आपके लिए है। आपका मतलब सारे पार्टिसिपेंट्स के लिए है। और मुझे बड़ा अच्छा लगेगा अगर आप में से ज्यादा प्रश्न मेरे सेशन के बाद पूछे जाएंगे, तो मुझे, क्योंकि वो एक रिफ्लेक्शन होगा कि आप इस प्रोग्राम में आपका इंटरेस्ट रहा है, इस प्रोग्राम में आपने कुछ जाना है। ये सारी बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। तो आज का प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं और हम आज अपने पैसे की बात करेंगे। अच्छा प्रीति जी, आई जस्ट वांट टू आस्क यू वन वेरी बेसिक क्वेश्चन। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मनी इन अवर लाइफ? पैसे की हमारी जिंदगी में कीमत क्या है, कुछ बताएंगे आप? सर, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है। money is something which will fulfill our basic needs, our luxury needs, everything. Great. Yes, you are absolutely right. Money takes care of our basic needs first. When we don't have anything, we think that our basic needs should be met. रोटी कपड़ा मकान, ये हर इंसान की बेसिक नीड्स है। एवरी ह्यूमन बीइंग हैज गॉट राइट टू गेट बेसिक नीड्स मेट। हर इंसान का अधिकार है कि उसकी जो बेसिक आवश्यकताएं हैं रोटी कपड़ा मकान की, वो पूरी हो। लेकिन प्रीति, यू विल अप्रिशिएट दैट व्हेन आवर बेसिक नीड्स आर मेट, शुड वी स्टॉप देयर? नो, वी डोंट, नोबडी डज। Then we think of comfort. अब मुझे जिंदगी थोड़ी आरामदायक होनी चाहिए, थोड़ा अच्छा सा घर होना चाहिए, घर में सारे गैजेट्स होने चाहिए, और भी जो चीजें जो मेरी जिंदगी को आरामदायक बनाती है, the things which makes my life comfortable should be available to me. When your comfort needs are also met, even when we don't stop. This is the mystery, but it is a fact of our life. फिर जैसा when you have just told, then we go for luxury. अब मेरा बड़ा घर होना चाहिए, बड़ी गाड़ी होना चाहिए। और कभी प्रीति के दिमाग में कभी ख्याल आता भी होगा कि एक दिन ऐसा आए जब मेरे घर के बराबर में एक हेलीपैड हो और मेरा अपना हेलीकॉप्टर वहां खड़ा रहे और मैं हेलीकॉप्टर में कहीं जाऊं। ये नेचुरल है, हर आदमी सपने देखता है। वी ऑल हैव ड्रीम्स, सबके सपने होते हैं और सबके बड़े बनने के सपने होते हैं। हम बड़ा बने, बड़ा पैसा हो मेरे पास, बड़ा नाम हो मेरे पास। तो पैसा हमारी बेसिक नीड्स को पूरा करता है, हमारे कंफर्ट्स को पूरा करता है, हमारी फैमिली ऑब्लिगेशंस को पूरा करता है, और पैसा हमें एक लग्जरी लाइफ भी देने के लिए देता है। इसलिए पैसे की जिंदगी में बहुत बड़ी अहमियत है और आप सब इस बात को समझेंगे। और प्रीति, शायद आपने एक बात सुनी भी होगी, ऊपर खुदा नीचे पैसा। भगवान ऊपर है, भगवान ने देखा नहीं है। वी डू फील गॉड मेनी टाइम्स, बट वी फील द नीड ऑफ मनी एवरी टाइम, एवरी डे, बिकॉज एवरी डे वी नीड मनी फॉर अवर लाइफ। दैट इज व्हाई द इंपॉर्टेंस ऑफ मनी। तो फर्स्ट थिंग आई वांट टू टेल ऑल ऑफ यू, please do understand, appreciate and accept the importance of money in our life. पैसे की अहमियत को जिंदगी में पहचानिए, स्वीकार कीजिए, क्योंकि जब तक आप स्वीकार नहीं करेंगे तब तक पैसा हमारे हाथ में हो इसका रास्ता शायद नहीं बनेगा। इसलिए पैसा हमारी जिंदगी में महत्वपूर्ण है, ये हमेशा आपको ध्यान रखना चाहिए। Now the second thing comes from where we get money. Preeti, are you working with the foundation or are Yes, you a sir. student? No, sir, I'm working with the foundation. Great. So you are working with the foundation, you must be getting something out of it. Yes, sir. हम कुछ लोग जॉब करते हैं,
सैलरी से पैसा मिलता है, कुछ लोग बिजनेस करते हैं, बिजनेस का प्रॉफिट होता है, उससे पैसा आता है, और कुछ लोग प्रोफेशन में जाते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आर्किटेक्ट हैं, इंजीनियर हैं, उनको अपने प्रोफेशन से पैसा मिलता है। तो जो भी हम काम कर रहे हैं, कुछ आपके टीचर्स होंगे, कुछ आपके ट्रेनर्स होंगे, जो भी हम काम कर रहे हैं उससे हमें पैसा मिलता है। और ये बात मैं कहना चाहता हूं, हम सबके पैसे का एक प्राइम सोर्स है। जैसे प्रीति का प्राइम सोर्स क्या है, प्रीति को फाउंडेशन से सैलरी मिलती है, कुछ लोग कहीं जॉब करते होंगे, उनको वहां सैलरी मिलती होगी। सम पीपल माइट बी हैविंग देयर ओन बिजनेस, they are earning money out of their business. Some people might be in profession, they are earning money out of their profession. So we have a prime source of money. Now, Priti, tell me what we do with the money which we get from our prime source. In your case, you are getting salary from the foundation. What you do with the salary which you get? Sir, I fulfill my needs, my family's needs. Very right. Actually, I'm getting you involved. Don't take it otherwise, because I want to take it forward with the involvement of our participants. And since you are coordinating the event, I'm taking again your name. Sorry for that. But the purpose is very simple, to connect with the participants. So what Priti is saying is, money fulfills their needs. And salary she get, Priti, whatever salary you are getting, a majority of our salary goes into taking care of our regular expenses. जो महीने के खर्चे हैं उसमें ही हमारा बहुत पैसा चला जाता है। राशन है, बच्चों की पढ़ाई है, ट्रेवल है, रेंटल है, बिजली पानी के बिल है, lot of things our money goes into that. Then Priti, are you aware that there is a one unique thing with all the Indians? Are you aware, Priti? We all Indians have got a very, very unique thing with us. Can you tell me what is the uniqueness with Indians? Sorry, sir, I didn't hear you. Can you repeat that? Indians have a unique thing with all of us. And what is the uniqueness of which we have, we all Indians? Did you get me? No, sir. हमारे साथ हम जितने भी भारतीय हैं उनके साथ एक बहुत विशेष बात है, सबके साथ है हमारे साथ. And what is that, Priti? Whatever we earn, whether we earn 10,000, whether we earn 1 lakh, whether we earn 10 lakhs, whatever we earn, we try not to spend all the money which we are earning. हम जो पैसा कमा रहे हैं वो कोशिश करते हैं, अशोक जी, कि सारा पैसा हम खर्च ना करें. ये हर इंडियन करता है, हर भारतीय परिवार करता है. अमीषा जी, whatever we are earning, we sincerely try that we don't spend all the money which we are earning. And the money which we don't spend out of our income, Priti, what it is called? It is called savings. उसे हम बचत कहते हैं. And we are all savers. हम सब बचत करने की कोशिश करते हैं. Of course मुश्किल है, महंगाई बढ़ गई है, परिवार की जिम्मेदारियां क्योंकि बहुत ज्यादा होती है. But what I want to say here is, every Indian and every Indian family, Ashok ji, sincerely try to take away some money out of their income, which we call saving. So we are savers. And Priti, we should be proud of it, that Indians are still one of the best savers in the world. आज भी दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा बचाने वाली कौम में, अशोक जी, कौन है? इंडियंस है. And that should be proud of all of us. So we are the best savers in the world. But unfortunately, Ashok ji and Priti, unfortunately, we do save, but we are casual about saving. हम बचत के बारे में बड़े कैजुअल है. कभी प्रीति ने 10,000 बचा लिए, कभी प्रीति ने 2,000 बचा लिए, कभी प्रीति ने 5,000 बचा लिए, कभी नहीं बचाए. ये कमी हम सब में है. इसलिए सबसे पहली बात मैं आप सबको कहना चाहता हूं, पार्टिसिपेंट्स को, बचत को एक आदत बनाइए. मेक सेविंग ए हैबिट. जैसे बहुत आदतें हमारी रेगुलर होती है, उसी तरह बचत को भी एक आदत बनाइए. मतलब हर महीने मुझे कुछ सेव जरूर करना है.
And Preeti, it makes no difference whether you save 100 rupees, whether you save 1 lakh rupees, because it will definitely depend on your salary and your family obligations. But what I am trying to emphasize here is, please make saving as a habit. हमें बचत करनी है, और अगर सैलरी कम है तो 50 रुपए बचाने हैं, 100 रुपए बचाने हैं, 200 रुपए बचाने हैं, 500 रुपए बचाने हैं, लेकिन कुछ ना कुछ बचाना जरूर है। ये सबसे पहली बात मैं आपको, और ये ब्लंडर माधव सर, that was a blunder we did, my generation did, that we were casual about saving. But to youngsters I want to tell, to young people I want to tell, please make saving is a habit, because it is going to change your life. और एक बात और मैं कह दूं, सेविंग ऑफ 100 रुपीज और 200 रुपीज और 5000 और 500 रुपीज, नॉर्मली पीपल थिंक अरे छोटा पैसा बच जाएगा तो क्या होगा, 500 रुपए बच जाएगा तो क्या होगा। माय डियर फ्रेंड्स, this saving of 500 and 1000 rupees a month is going to be lakhs of rupees in your life down the line after 10, 15, 20 years. ये छोटा छोटा बचाया पैसा भी आगे जाकर बहुत बड़ा बनने वाला है। इसलिए पहली बात मैं कहना चाहता हूं, बचत को एक आदत बनाइए, बचत को शुरू से कीजिए। द डे यू स्टार्ट अर्निंग, जब आप पैसा कमाना चालू करते हैं, और प्रीति अब जो टाइम आपका निकल गया उनकी बात नहीं कर रहा, अगले महीने से कुछ ना कुछ जरूर हर महीना बचाइए। मैं कभी ये नहीं कह रहा हूं 20% बचाइए, 30% बचाइए, 50% बचाइए, बिकॉज इट विल डिपेंड ऑन, बेसिकली इट विल डिपेंड ऑन योर फैमिली ऑब्लिगेशंस एंड योर इनकम। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, पैसा बचाइए, हमेशा बचाइए, लगातार बचाइए, एवरी मंथ बचाइए। वी शुड बी रेगुलर इन सेविंग, हर महीना पैसा बचाना है। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं, व्हेन योर इनकम इंक्रीजेज, प्रीति यू मस्ट बी गेटिंग सम इंक्रीमेंट एवरी ईयर, सम इंक्रीज इन द सैलरी। Yes, sir. तो विद द इंक्रीज इन सैलरी वी मस्ट इंक्रीज योर सेविंग। जब भी हमारी सैलरी बढ़ती है, हमारा बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ता है, हमारे प्रोफेशनल फीस बढ़ती है, हमेशा हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने बचत को भी बढ़ाएं। ये दोनों छोटी छोटी बातें आपकी जिंदगी बदलने वाली है। मैं सब पार्टिसिपेंट्स को ये कहना चाहता हूं। बड़ी छोटी बातें लगती है आपको, इट माइट लुक्स वेरी डैम इजी थिंग एंड वेरी स्मॉल थिंग्स, but my dear participant, I again want to emphasize here, please do start saving right from the first month when you start earning. Be regular in saving and keep increasing your saving when your income increases. अब अगला प्रश्न आता है, what to do with the savings? जो हम पैसा बचाते हैं प्रीति, उसका आप क्या करती हैं? Whatever you are saving, what you do with the savings? It remains idle, sir. It gets collected in the bank. Yeah, that's a blunder you are doing. Whatever you are saving, Preeti, and to all the participants, I want to tell you, whatever you are saving, please do put your savings into some instrument. कहीं अपना पैसा लगाइए, और पैसा लगाने को हम क्या बोलते हैं प्रीति नॉर्मली? It is called investment. It is called investment. So we should not only be saver, but we should also be investor. हमें सिर्फ पैसा बचाना नहीं है, पैसे को इन्वेस्ट भी करना है। क्योंकि अगर आपने पैसा बचाया और घर में इकट्ठा कर लिया, हर महीने जाके बक्से में रख दिया जैसे प्रीति कर रही है, ये सबसे बड़ा ब्लंडर है, ये सबसे बड़ा क्राइम है। आई एम यूजिंग द वर्ड क्राइम अगेंस्ट यूर सेल्फ, अगेंस्ट योर फैमिली एंड अगेंस्ट योर कंट्री एज ए होल। तो कभी भी पैसा बचाना जरूरी है, ये बात सही है, लेकिन पैसा बचाकर घर में नहीं रखना चाहिए, नहीं रखना है, उसको कहीं लगाना है। और कहीं लगाने की प्रक्रिया को, प्रोसेस को हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और ज्यादातर लोग कहीं कहीं पैसा लगाते हैं, जो भी बचत करते हैं कहीं पैसा लगाते हैं, इसलिए वो इन्वेस्टर भी हैं। लेकिन एक कमी हम सब में है प्रीति जी, और वो आप में नहीं होनी चाहिए। ये बात मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको समझाना चाहता हूं, और वो कमी ये है, हम पैसा बचाते हैं,
हम पैसा निवेश इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। और प्रीति बताइए इन्वेस्टमेंट का पर्पज क्या है, हम क्यों इन्वेस्टमेंट करते हैं? To get a better return in future. Yeah, the only purpose of investment is my money should also earn money for me. मेरा पैसा भी मुझे पैसा कमा कर दे। That's the only purpose of investment. And your money will earn the money for you only when you invest in a right way. जब आप सही तरह से पैसा बचाएंगे और उसको सही लगाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे, तभी आपका पैसा ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाकर आपको देगा। और प्रीति जी, एक दिन आपकी जिंदगी में ऐसा आए, आई विश and I pray God that every participant has got a one day in their life when their income on investment will be bigger than your regular income. एक दिन आपकी जिंदगी में ऐसा आए कि आपको आपका पैसा इतना पैसा कमा कर दे रहा है, जितना आपको सैलरी मिलती है वो कम हो जाए, और जो ये पैसा कमा कर दे रहा है ये ज्यादा हो जाए। ऐसा हो सकता है। आई वांट टू गिव यू कॉन्फिडेंस टू ऑल ऑफ यू। ऐसा हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको प्रयास करने पड़ेंगे। यू हैव टू मेक रेगुलर एंड कंसिस्टेंट एफर्ट। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि पैसा कहीं कमाए तो इस तरह से आपको बात ये जरूर होनी चाहिए। तो हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन बदकिस्मत, अनफॉर्चुनेटली प्रीति, आई डोंट नो वेदर यू विल एग्री विथ मी और नहीं, most of the middle class, salary class person who work hard in saving and sacrifice a lot of things and invest their savings, but even after that a majority of the middle class, salary class person just remain money accumulators in their life. They don't make money on investment, they don't make money out of their money. ये बदकिस्मती होती है कि ज्यादातर लोग पैसा बचाते हैं, पैसे को इन्वेस्ट भी करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो जिंदगी भर केवल पैसा इकट्ठा करते हैं, पैसे से पैसा नहीं बनाते हैं। और प्रीति जी, जब तक पैसे से पैसा नहीं बनेगा आपकी प्रॉस्पेरिटी नहीं होगी। ये भी बात आप समझ लीजिए, इसका डायरेक्ट लिंकेज है। जब तक आपका पैसा नहीं बनाएगा तब तक आपकी प्रॉस्पेरिटी नहीं बनाएगी। लेकिन अब मैं समझाना चाहता हूं पैसा इकट्ठा करना और पैसे से पैसे बनाने में क्या डिफरेंस है। और प्रीति जी, अगर आपको कोई ऐतराज नहीं हो तो मैं इसे एक एग्जांपल देना चाहता हूं और उस एग्जांपल में आपका नाम लेना चाहता हूं। कैन आई टेक योर नेम? Yes, sir, sure. थैंक यू। तो आई एम गिविंग ए वेरी सिंपल एग्जांपल टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स एंड द एग्जांपल इज बैंक एफडी। प्रीति, आपने बैंक एफडी का नाम सुना है, फिक्स डिपॉजिट का? Yes, sir, I have a FD. ग्रेट ग्रेट, वेरी राइट। तो एक बैंक एफडी का मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूं। मान लीजिए प्रीति के पास 1 लाख रुपया है। ऑफ कोर्स शी हैज गॉट, माइट बी हैविंग मच मोर मनी देन दैट, बट फॉर एग्जांपल सेक आई एम सेइंग दैट प्रीति हैज गॉट 1 लाख रुपीज एंड शी गोज फॉर ए 1 ईयर एफडी विद ए गुड बैंक। एक अच्छे बैंक में 1 साल की प्रीति 1 लाख की एफडी करवाती है, और मान लेते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट 7%, वो 6% मिलता है। तो 1 साल बाद प्रीति जब आपसे मिलते हैं और आपसे पूछते हैं आपके बैंक एफडी के आपको क्या फायदा हुआ है, क्या मिला, आपका जवाब क्या होगा? व्हाट यू विल गेट? Sir, I have मैंने एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी एक बैंक में डाला है, तो उस अमाउंट मेरा सिक्योर है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, इवेंचुअली मुझे उस पे इंटरेस्ट मिल रहा है, वही so मैं my आपको money is getting increased every year. एग्जैक्टली वही आप नहीं, सपोज द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6% ऑन 1 ईयर एफडी, देन यू विल गेट 6,000 रुपीज एज इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर। एम आई राइट? आपको 1 साल का 6,000 मिलेगा ना। अगर आपने 1 लाख रुपए की एफडी करवाई है और इंटरेस्ट रेट अगर 6% है तो कितना, 6,000 हुआ ना? यस सर। तो आपको 6,000 रुपए इंटरेस्ट मिला, और प्रीति बड़ी खुश है कि मुझे 6,000 रुपए इंटरेस्ट मिला है और मेरा 1 लाख रुपए मुझे बैंक ने वापस कर दिया है। लेकिन प्रीति, आप गलत हैं। यही बात मैं सबको समझाना चाहता हूं। प्लीज इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ जाइए। प्रीति गलत क्यों है?
प्रीति बड़ी खुश है कि मुझे 6,000 मिला, लेकिन प्रीति इस 1 साल में जब आपने एफडी करवाई थी, एक और डेवलपमेंट साथ साथ होता रहा। पता है वो क्या डेवलपमेंट था? महंगाई भी बढ़ती रही है। एम आई राइट? यस सर। महंगाई भी बढ़ी है ना। अगर मान लीजिए आप 1 लाख की एफडी नहीं करवाते और इस 1 लाख रुपए से 1 साल पहले कोई सामान ले लेते, कोई सर्विसेज अवेल कर लेते, तो बताइए बताइए प्रीति जी, आपको 1 लाख 1 साल बाद वही चीजें, वही सामान, वही सर्विसेज आपको 1 लाख रुपए में मिलेगी? मिलेगी क्या? नहीं सर। क्यों? महंगाई बढ़ गई है। महंगाई बढ़ रही है ना, हर साल महंगाई भी बढ़ रही है ना। हाँ तो सर, लेकिन डेप्रिसिएशन भी तो हो रही है उस सामान की। वही तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वही तो बात समझाना चाहता हूं मैं, कि महंगाई बढ़ रही है। अब मान लेते हैं महंगाई 5% बढ़ी है 1 साल में जब आपने एफडी करवाई थी। इसके मायने क्या हुआ कि पिछले साल अगर आप एफडी नहीं करवाती और उस 1 लाख रुपए से कोई सामान ले लेती, कोई चीजें ले लेती, 1 साल बाद प्रीति आपको उन्हीं सामान और उन्हीं सर्विसेज के लिए 1,05,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। 1 लाख रुपए में वो सामान नहीं आएगा, क्योंकि महंगाई 5% बढ़ी है। अब आप देखिए, आप बड़ी खुश थी जब आपको 6,000 रुपए बैंक का इंटरेस्ट मिला, लेकिन सही मायने में अगर आप देखें, 6,000 में से 5,000 रुपए तो आपकी महंगाई खा गई। लेकिन फिर भी प्रीति खुश है, कोई बात नहीं साहब, 5,000 रुपए महंगाई खा गई। Whatever it might be, I still have got 1,000 rupees out of 6,000 which I earn as interest on bank FD. No, Priti, there is another factor which you might not be knowing. Whatever you earn as interest on FD, Priti, it will be regarded as your income, total income, and you will have to pay income tax on 6,000 as well. जो 6,000 रुपए आपको बैंक का इंटरेस्ट मिला है प्रीति, वो आपकी इनकम मानी जाएगी और इनकम टैक्स देना पड़ेगा 6,000 पे। और अगर आप 20% ब्रैकेट में भी आती हैं, इसका मतलब आपको 6,000 पे 20% इनकम टैक्स भी देना पड़ेगा। 20% कितना हुआ? इट कम्स अराउंड 1,200 रुपीज, करीब करीब 1,200 रुपए आपको 1,000 रुपए पे आपको इस पे आपको 1,200 रुपए आपको 6,000 पे इनकम टैक्स भी देना पड़ा। अब आप देखिए प्रीति जी, आप बड़ी खुश थी जब आपको 6,000 रुपए बैंक का इंटरेस्ट मिला, और अभी भी आप कर रही हैं कि मुझे बैंक में पैसा डाल रखा है उसको इंटरेस्ट मिलता है। तो 6,000 जो आपको इंटरेस्ट मिला, उसमें से 5,000 महंगाई खा गई, 1,200 रुपए इनकम टैक्स वाले ले गए। प्रीति जी, कुछ बचा आपके पास? Did you get anything? नहीं कुछ सर। बैलेंस बचा आपके पास? आपके पास कुछ नहीं बचा, बल्कि 1,200 रुपए आपकी जेब, वो 200 रुपए आपकी जेब से और चले गए। 5,000 प्लस 1,200, ये हो गया 6,200 रुपया। आपको इंटरेस्ट मिला था 6,200 रुपया आपकी जेब से और चले गए। मतलब आपको कुछ भी रियल सेंस में नहीं मिला। जो 6,000 आपको मिला था वो आपका नोशनल रिटर्न था प्रीति जी, आपको रियल रिटर्न कुछ भी नहीं मिला। और ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। जब तक आपको कुछ रियल रिटर्न नहीं मिलेगा इन्वेस्टमेंट पर, तब तक बचत करना और निवेश करना बेकार है। और इसी एग्जाम्पल को थोड़ा मैं आगे बढ़ाता हूं। मान लेते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक की एफडी का 8,000 है, मान लेते हैं, तो आपको कितने मिलेगा प्रीति जी? 1 साल में 1 लाख पे 8,000 रुपए मिलेगा आपको। अगर मान लेते हैं महंगाई 5% बढ़ी, तो 8,000 में से 5,000 महंगाई खा गई, और 8,000 पे आपको 20% टैक्स भी देना पड़ेगा। Then 1,600 you will have to pay as income tax as well. So out of 8,000, 5,000 has been eaten by the inflation. 1,600 you have paid as income tax, but even after that there remains 1,400. और ये 1,400 रुपए जो आपको बचा है प्रीति जी, जब 8% इंटरेस्ट मिलता है, यही आपका रियल रिटर्न है। ये मैं सबको समझाना चाहता हूं कि जब तक आपको जो पैसा रिटर्न मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, डिविडेंड मिलता है, और कुछ भी मिलता है इन्वेस्टमेंट पर, उसमें से महंगाई हटाइए, उसमें से टैक्स हटाइए, अगर कुछ बचता है तो वही आपका रियल रिटर्न है।
और प्रीति जी रियल रिटर्न का फार्मूला मैं आपको शेयर कर रहा हूं, आप चाहें तो यंग जो चाहते हैं वो नोट भी कर लें। रियल रिटर्न इक्वल टू नोशनल रिटर्न, रियल रिटर्न इंटू नोशनल रिटर्न माइनस इन्फ्लेशन माइनस टैक्स लाइबिलिटी इफ एनी। रियल रिटर्न इक्वल टू नोशनल रिटर्न, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, माइनस इन्फ्लेशन माइनस टैक्स लाइबिलिटी। और फिर दोबारा ये कहना चाहता हूं, जब तक आपको अपने इन्वेस्टमेंट पर कुछ रियल रिटर्न नहीं मिलता तब तक प्रीति जी बचत करना और उसको निवेश करना बेकार है, आपका कोई फायदा नहीं हो रहा है। इसलिए आपको ट्राई करना चाहिए कि आपको इन्वेस्टमेंट पर कुछ रियल रिटर्न जरूर मिले। और जब तक आपको रियल रिटर्न नहीं मिलेगा, आप केवल पैसा इकट्ठा करने वाले रहेंगे, पैसे से पैसा बनाने वाले, पैसे से पैसा कमाने वाले नहीं हो पाएंगे। ये बात आपको बहुत अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। अब ऐसा क्यों होता है कि ज्यादातर हमारे जैसे लोग, हम रियल रिटर्न नहीं कमा पाते हमारे इन्वेस्टमेंट पर, विशेष तौर पर मध्यम वर्गीय लोग? व्हाट द रीजन प्रीति जी? हैव यू थॉट ऑफ एनीथिंग? व्हाट द रीजन? एक रीजन है, और वो प्रीति जी आपने भी एक अभी वर्ड यूज किया था बीच में, मेरा पैसा सेफ है। यही रीजन बेसिक होता है कि ज्यादातर मध्यम वर्गीय लोग अपने इन्वेस्टमेंट में रिस्क लेना नहीं चाहते। अरे बाबा, डोंट टॉक अबाउट रिस्क, वी डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क, वी वांट टू गो फॉर सेफ इन्वेस्टमेंट ओनली। हम केवल सेफ इन्वेस्टमेंट ही करना चाहते हैं। और अक्सर जब मेरे प्रोग्राम होते हैं, एक प्रश्न आ जाता है सामने, सर कुछ सेफ इन्वेस्टमेंट के बारे में बताइए। लेकिन प्रीति जी, मेरा उसको बड़ा साफ जवाब है, आप शायद मेरे बात से एग्री करें नहीं करें, कोई भी इन्वेस्टमेंट सेफ नहीं है प्रीति जी। आपको पता है, बैंक के एफडी करवाते हैं आप, और अगर कोई बैंक फेल हो जाता है तो आपको ज्यादा से ज्यादा कितना पैसा मिलेगा? ज्यादा से ज्यादा 5 लाख मिलेगा। अगर आपने 10 लाख की एफडी करवाई है और कोई बैंक फेल हो गया है तो आपको ज्यादा से ज्यादा केवल 5 लाख मिलेगा। 5 लाख आपके डूब जाएंगे। और ये 5 लाख भी अब हुआ है, 2 साल पहले ये केवल 1 लाख रुपया था। इसका मतलब क्या कहना चाहता हूं, हर इन्वेस्टमेंट में रिस्क है। कहीं ज्यादा रिस्क है, कहीं कम रिस्क है, कहीं बहुत कम रिस्क है, कहीं बहुत ज्यादा रिस्क है, वो अलग बात है। बट एवरी इन्वेस्टमेंट हैज गॉट रिस्क। इस चीज को आप प्लीज अप्रिशिएट कीजिए और समझिए, क्योंकि जब तक आप ये समझेंगे नहीं तब तक बात आगे नहीं बढ़ेगी। इसलिए पहले एक बात मैं आपको सबसे पहले कह देना चाहता हूं, इन्वेस्टमेंट में रिस्क है। कहीं ज्यादा रिस्क है, कहीं कम रिस्क है, कहीं बहुत कम रिस्क है, कहीं बहुत ज्यादा रिस्क है। दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट एवरी इन्वेस्टमेंट हैज गॉट सम रिस्क। लेकिन अगर रिस्क है तो रिस्क को प्रीति जी हम मैनेज कर सकते हैं, रिस्क को हम कम कर। रितेश जी, मैं प्रश्न बाद में लूंगा आपके। वंस माय सेशन इज ओवर, you are welcome to ask the question, as many questions you ask, you are welcome. तो हर इन्वेस्टमेंट में रिस्क है, लेकिन रिस्क को हम कम कर सकते हैं, रिस्क को हम मैनेज कर सकते हैं। प्रीति जी, वो कैसे कर सकते हैं? एक छोटी सी एक फार्मूला मैं आपको समझाना चाहता हूं, देना चाहता हूं, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, दिमाग में बैठा लीजिए। और उस फार्मूले का नाम है सोचकर समझकर निवेश कर। सोचकर समझकर निवेश कर। आपको पैसा इन्वेस्ट करने से पहले सोचना है, समझना है, और फिर ही इन्वेस्ट करना है। जब तक आप सोचेंगे नहीं, समझेंगे नहीं और वैसे ही इन्वेस्ट करते रहेंगे, तब तक आपका इन्वेस्टमेंट करने का जो पर्पज है वो सर्व नहीं होगा। और आपको इन्वेस्टमेंट से कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए फिर दोबारा बोल रहा हूं, सोचकर समझकर निवेश कर। अब ये क्या सोचना है, क्या समझना है? पहली बात जो है मैं सोचनी है वो है, मैं कितना रिस्क ले सकता हूं। और प्रीति जी, आपकी रिस्क लेने की क्षमता अलग है,
और पार्टिसिपेंट की सबकी अलग है। क्यों अलग है? इसलिए अलग है कि हमारी इनकम अलग अलग है, हमारे फैमिली ऑब्लिगेशंस अलग अलग है, सबकी अलग अलग है, सबकी इनकम अलग अलग है, सबकी फैमिली ऑब्लिगेशंस अलग है। किसी की इनकम कम है, किसी की थोड़ी ज्यादा है, किसी की बहुत ज्यादा है, किसी का परिवार बहुत छोटा है, किसी का परिवार थोड़ा बड़ा है, किसी का परिवार और बड़ा है। तो इसलिए आपकी रिस्क लेने की क्षमता के अनुसार ही आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जिस प्रोडक्ट में रिस्क लेने की क्षमता कम हो और आपकी रिस्क लेने की क्षमता कम है, तो फिर आपको उस प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन अगर आपकी रिस्क लेने की क्षमता ज्यादा है और इस इन्वेस्टमेंट के प्रोडक्ट में रिस्क बहुत ज्यादा है, तो आपको उसमें थोड़ा इन्वेस्टमेंट जरूर करना चाहिए। क्यों? ये अर्थशास्त्र का एक बेसिक रूल है, देयर इज ए फंडामेंटल रूल ऑफ इकोनॉमिक्स, मोर रिस्क मोर रिवार्ड। इफ यू टेक मोर रिस्क, देन the probability of getting higher return increases, no guarantee at all। अगर आप ज्यादा रिस्क लेते हैं, इसकी गारंटी नहीं है कि आपको ज्यादा रिवॉर्ड मिलेगा। हाँ, आपकी संभावना बढ़ जाएगी, the probability of getting higher return increases। So those who are young, I wish to encourage all of you, those who are young like Preeti ma'am, please take risk, but risk has to be calculated। It should not be a blind risk। कभी भी अंधा रिस्क मत लीजिए। रिस्क लेने की क्षमता के अपनी रिस्क लेने की क्षमता के अनुसार ही रिस्क लीजिए और ऐसे जगह, ऐसे प्रोडक्ट में ही पैसा लगाइए जहां आपकी रिस्क लेने की क्षमता के अनुसार ही रिस्क है ब्रॉडली। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, हमेशा अपना इन्वेस्टमेंट इस तरह से कीजिए कि जब जब आपको पैसे की आवश्यकता हो, आपके हाथ में पैसा होना चाहिए। क्योंकि प्रीति जी, हम इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं? हम इसलिए इन्वेस्टमेंट करते हैं कि whenever I need money for bigger things in my life, I should have money। एंड हमारी जिंदगी में सबके बड़े बड़े काम होते हैं। नॉर्मली एवरी मिडिल क्लास, सैलरी क्लास पर्सन हैज गॉट सम बिगर थिंग्स इन देयर लाइफ। और वो बिगर बड़ी बड़ी बातें क्या है? नॉर्मली स्पीकिंग, द फर्स्ट मेजर थिंग फॉर विच यू विल नीड ह्यूज मनी इज मैरिज। मैरिज के लिए पैसा चाहिए, बहुत पैसा चाहिए। उसके बाद में, मैरिज के बाद में परिवार बनेगा, बच्चे परिवार में आएंगे, सेलिब्रेशन होगा, पैसा चाहिए। फिर हर परिवार चाहेगा मैं अपना घर बनाऊं, उस घर के लिए, उस फ्लैट के लिए पैसा चाहिए, बहुत पैसा चाहिए। फिर हर परिवार चाहेगा मेरे घर में 4 व्हीलर मिनिमम होना ही चाहिए, तो अगर 4 व्हीलर नहीं है तो 4 व्हीलर लेना है, उसके लिए पैसा चाहिए। फिर प्रीति जी, एक और नई बात आजकल हो गई है जो हमारे टाइम नहीं हुआ करती थी, और वो ये है कि आजकल हर परिवार घूमने जाना चाहता है, देश में घूमना चाहता है, विदेश में जाना चाहता है, लेकिन उसके लिए बहुत पैसा चाहिए। उसके बाद में एक और काम बड़ा होता है 10, 15, 20 सालों बाद में प्रीति जी, जब आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे, बच्चों को हायर एजुकेशन करवानी है, अच्छी से अच्छी हायर एजुकेशन करवानी है, प्रोफेशनल एजुकेशन करवानी है, उसके लिए पैसा चाहिए। फिर बच्चों की शादी करनी है एजुकेशन के बाद में, उसके लिए पैसा चाहिए। और आखिरी में अपनी रिटायरमेंट की जिंदगी जीने के लिए भी पैसा चाहिए। क्यों? पेंशन, ज्यादातर कहीं पेंशन नहीं है आजकल, और जहां पेंशन है वो भी गवर्नमेंट ने अब बंद कर दी है। तो रिटायरमेंट के लिए भी हमें, जिंदगी जीने के लिए भी बहुत पैसा चाहिए। और एक बात और आपको जानना चाहिए, जब हमारा देश आजाद हुआ था प्रीति जी, हमारे इंडियंस की एवरेज एज वाज 37 years only, but then now the average age has increased to 71 years। What does it mean? It simply means that even after retirement, normal middle class, salary class person will be living for next 10, 15, 20, 25 years even। 25 साल हमें और जिंदा रहना है, मजबूरी में नहीं रहना है, जिंदा रहना है, जीना है, लेकिन उसके लिए पैसा तो चाहिए ना भाई। पैसा कहां से आएगा? क्योंकि रिटायरमेंट के बाद एक और नुकसान हमारा हो जाता है, वी डोंट गेट सैलरी आफ्टर रिटायरमेंट। जो हमारा सैलरी आता है मंथली, वो हमारा आना बंद हो जाएगा। इसलिए रिटायरमेंट के लिए बहुत पैसा इकट्ठा करना है, उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट करना है, और उस पैसे से जो रिटर्न आएगा मंथली हमारा, उस पैसे से ही हमें अपनी जिंदगी चलानी है।
इसलिए रिटायरमेंट के लिए पैसा इकट्ठा करना बहुत जरूरी है। तो जो मैंने एक पेपर लीजिए और एक पेपर पर मोटे मोटे लिख लीजिए कि क्या क्या आपकी जिंदगी में बड़े काम हैं जो मैंने अभी गिनाए हैं। इसके अलावा भी आपके कोई बड़े काम हो सकते हैं आपके दिमाग में। पहले कॉलम में लिख लीजिए क्या क्या मेरी जिंदगी में बड़े काम हैं जिनके लिए पैसा चाहिए। दूसरा लिखिए ये बड़े काम मेरी जिंदगी में कब कब होने वाले हैं। Suppose somebody says that I'm going to be married after 2 years, so put it 2 years against marriage. Likewise, 2 year, 3 year, 5 year, 10 year, 15 year, 20 year, 30 year. Start putting the period when these milestones are likely to happen. And third and very important column, Preeti ji, that is how much money I will need for each milestone. हर बड़े काम के लिए मुझे कितना कितना पैसा चाहिए, that is equally important. So start putting the money for each milestone. Suppose somebody says that for marriage I will need 5 lakhs, for honeymoon package because other expenses would be taken care of by my parents. Okay, put it 5 years ago marriage. Likewise, घर बनाने के लिए 50 लाख रुपया चाहिए, गाड़ी लेने के लिए 10 लाख रुपया चाहिए. Like start putting the money which you will need. Two things I want to tell all the participants, my dear friends. The first and very important thing is higher education and professional education of children is very important in every parent's life. हर माँ बाप चाहता है कि अपने बच्चों को सबसे अच्छी हायर एजुकेशन एंड प्रोफेशनल एजुकेशन, लेकिन उसके लिए पैसा तो चाहिए भाई। आज मान लीजिए प्रीति जी, अच्छे इंस्टीट्यूट से एमबीए करने के लिए, 2 साल का एमबीए करने के लिए, रेगुलर एमबीए करने के लिए नॉर्मल एक्सपेंसेस आर अराउंड 20 lakhs। ये आज है प्रीति जी, लेकिन जब आपके बच्चे 25 साल बाद हायर एजुकेशन के लिए जाएंगे, प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए जाएंगे, एमबीए के लिए जाएंगे, तो हैव यू एवर थॉट व्हाट मनी यू विल नीड? आज जो एमबीए 20 लाख में हो रहा है प्रीति जी, एंड टू ऑल पार्टिसिपेंट्स आई वांट to tell you very bluntly, the MBA cost which is 20 lakhs today, after 25 years when your children will go for higher education, the same MBA will cost not less than 2 crore rupees. इसी MBA के लिए एक बच्चे के लिए आपको 2 करोड़ रुपया खर्च करना पड़ेगा। महंगाई की वजह से आज जो 20 लाख में MBA हो रहा है, महंगाई की वजह से वो 25 लाख बाद करीब करीब 2 करोड़ रुपए में होगा। और अगर आपके 2 बच्चे भी हैं तो 4 करोड़ रुपए आपको केवल बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए चाहिए। फिर मैं रिटायरमेंट की बात कर रहा था। मान लीजिए कोई आदमी कहता है कि मेरी उम्र आज 30 साल है और मेरे महीने के खर्चे 30,000 रुपए में मैं आई एम मैनेजिंग माई मंथली एक्सपेंसेस विद 30,000। प्रीति जी, इट इज टुडे। आज वो 30,000 रुपए में अपने घर का खर्चा मैनेज कर रहा है, बट व्हेन ही और शी बिकम 60 आफ्टर 30 ईयर्स, आपको कभी आपने अंदाजा लगाया कितना पैसा हर महीना चाहिए होगा घर के खर्चों के लिए? जो घर का खर्चा आज 30,000 रुपए में चल रहा है, उसी घर खर्च के लिए 30 साल बाद आपको महंगाई की वजह से कम 2 लाख रुपया हर महीना चाहिए। कभी आपने ये बातें सोची नहीं होगी, लेकिन इट इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ। प्लीज डू थिंक एंड बी सीरियस अबाउट दीज थिंग्स। तो 2 लाख का मतलब करीब करीब 25 लाख रुपया आपको हर साल चाहिए रिटायरमेंट के पहले साल में। एक और माइनस पॉइंट हो गया, सैलरी नहीं आ रही है, सैलरी बंद हो गई, अब 25 लाख रुपया कहां से आएगा? अगर आप आज से ही अपने रिटायरमेंट के लिए पैसा इकट्ठा करें, ज्यादा से ज्यादा पैसा जोड़ें और बाद में जब रिटायर हो जाए उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट करें, उस पैसे से जो रिटर्न आएगा उससे ही आपका घर का खर्चा चलेगा रिटायरमेंट के बाद में। इसलिए एक प्रश्न आता है कितना पैसा जोड़ना चाहिए। एक थंब रूल मैं आपको शेयर करता हूं। योर रिटायरमेंट कॉर्पस शुड बी नॉट लेस देन 20 times ऑफ योर एनुअल एक्सपेंसेस। आपका रिटायरमेंट के लिए आपको इतना पैसा इकट्ठा करना है कि जो आपके 1 साल का खर्चा रिटायरमेंट के बाद जो आपका होगा, राशन का महीने के खर्चे होंगे, उसका कम से कम 20 गुना आपको इकट्ठा करना है। और जैसा मैंने अभी बताया, आप सपोज कीजिए रिटायरमेंट का खर्च बाद आपका पहले साल का खर्चा 25 लाख रुपए आता है, 2 लाख रुपए पर मंथ के अनुसार।
आपको कम से कम 5 करोड़ रुपया केवल रिटायरमेंट के लिए इकट्ठा करना चाहिए, अगर आपको जिंदगी आराम से जीनी है तो, वरना परेशानी होगी, आप बच्चों पे डिपेंडेंट रहेंगे। और कोई भी माँ बाप नहीं चाहता कि वो बच्चों पे डिपेंडेंट हो, रादर वो चाहता है कि मैं बच्चों को कुछ दूं, रिटायरमेंट के बाद में भी बच्चों के लिए कुछ छोड़ के जाऊं। वो कैसे पॉसिबल होगा? दैट विल बी पॉसिबल ओनली व्हेन यू स्टार्ट अक्यूमुलेटिंग मनी फॉर योर रिटायरमेंट लाइफ एंड कंटिन्यू टू मेड ए ह्यूज कॉर्पस। तो ये जो चार्ट मैंने बनाया, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, इस तीसरे कॉलम का अगर आप टोटल लगाएंगे प्रीति जी, तो आप थोड़ा सा डर जाएंगे। यू माइट गेट स्कैरी एंड आई वांट यू टू बी स्कैरी। मैं चाहता हूं आप डरें, आप सब लोग पार्टिसिपेंट डरें। क्यों? कि जब डरेंगे तो समझेंगे, जब डरेंगे तो इसकी इंपॉर्टेंस समझेंगे, और जब डरेंगे तो पैसा बचाना चालू करेंगे, पैसे को निवेश करना चालू करेंगे, सही तरह से निवेश करेंगे। और ये जो चार्ट हमने बनाया है प्रीति जी, इसको टेक्निकल भाषा में फाइनेंशियल प्लान कहते हैं, वित्तीय नियोजन कहते हैं। और मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो भी पार्टिसिपेंट हैं, बच्चे भी हैं, उनको समझाने के लिए, और जो ऑलरेडी पैसा अर्न कर रहे हैं उनको प्रैक्टिस में लाने के लिए, अपना फाइनेंशियल प्लान बनाइए। और ये रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान काम है। घर में बैठ जाइए, एक पेपर ले लीजिए, 3 कॉलम बनाइए, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, जैसा मैंने बताया, अपना फाइनेंशियल प्लान बनाइए। क्योंकि फाइनेंशियल प्लान आपको एक पिक्चर क्लियर करेगा कितना पैसा कब कब आपको किस किस काम के लिए चाहिए, हाउ मच मनी यू विल नीड फॉर व्हाट पर्पज, फॉर व्हाट माइलस्टोन, व्हाट मेजर थिंग इन योर लाइफ। एंड वंस द गोल्स आर क्लियर यू विल वर्क हार्ड। जब आपके सामने बड़ा पिक्चर क्लियर हो जाएगी, किन किन बड़े कामों के लिए कब कब मुझे कितना कितना पैसा चाहिए, तब आप ज्यादा मेहनत करेंगे, ज्यादा पैसा बचाएंगे, पैसे को अच्छी जगह निवेश करेंगे, ज्यादा से ज्यादा रिटर्न कमाएंगे। इसलिए दोबारा जोर देकर कहता हूं, फाइनेंशियल प्लान बहुत जरूरी है। हर आदमी का फाइनेंशियल प्लान होना बहुत जरूरी है। प्लीज अपना फाइनेंशियल प्लान प्रीति जी आप जरूर बनाइए अगले संडे को घर में बैठकर। और मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, कोई भी आपकी उम्र हो, चाहे आप अगर आप 50 भी पार कर गए हैं, तो बाकी 10 सालों में आपको क्या क्या पैसे के खर्चे किस किस कामों के लिए चाहिए। अगर आप 40 के हो गए हैं, तो अगले 20 सालों में आपको किन किन बातों के लिए कितना कितना पैसा कब कब चाहिए, ये प्लान कीजिए। और फिर प्लानिंग के अनुसार अपना इन्वेस्टमेंट कीजिए। इंदुमती में आपको, आई विल टेक योर क्वेश्चंस once my session is over. Just bear with me for some more time. तो इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट बात इन्वेस्टमेंट के बारे में आपको समझनी चाहिए, दैट इज पावर ऑफ कंपाउंडिंग। एंड प्रीति जी, पावर ऑफ कंपाउंडिंग इज 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ये दुनिया का 8वां आश्चर्य है। एंड दोज हु अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ पावर ऑफ कंपाउंडिंग will have comfort in their life as far as your finance requirement is concerned. That is why please do understand the importance of power of compounding in your life. And what is power of compounding in investment? Very simple. You have to make a promise with yourself, not to others but to yourself, that whatever and whenever I will get return on my investment, जब जब मेरे इन्वेस्टमेंट पर मुझे रिटर्न मिलेगा, इनकम मिलेगी, फायदा होगा, नेचुरली व्हेन यू विल इन्वेस्ट यू विल गेट इनकम और रिटर्न और प्रॉफिट, नॉट टुडे बट टुमारो, डे आफ्टर 1 year, after 5 years, after 10 years, you will definitely get return on your investments. So whenever and whatever, चाहे 5,000 मिले, चाहे 50,000 मिले, चाहे 5 लाख रिटर्न मिले मेरे इन्वेस्टमेंट पर, I make a promise with myself, एक अपने साथ एक promise करता हूं, that I will never use that return for my personal consumption. कभी भी जो रिटर्न मुझे मिलेगी उसको मैं खर्च नहीं करूंगा, अपने पे खर्च नहीं करूंगा और किसी काम के लिए खर्च नहीं करूंगा, उसको मैं केवल री इन्वेस्ट करूंगा। I will reinvest the profit or income on investment whatever I get. जब जब मुझे अपने इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न मिलेगी उसको मैं हमेशा उसको मैं
री इन्वेस्ट करूंगा, जो मैं रेगुलर सेविंग कर रहा हूं उसके साथ क्लब करके उसको री इन्वेस्ट करूंगा। कभी भी अपने खर्चों में नहीं लूंगा, उसको खर्च नहीं करूंगा। ये मुश्किल है माय डियर पार्टिसिपेंट्स, प्रीति जी आसान नहीं है, बट इट इज नॉट इम्पॉसिबल। ये मुश्किल भी नहीं है, इतना मुश्किल भी नहीं है कि नहीं कर पाए, हम कर सकते हैं। ओनली थिंग इज कमिटमेंट, ओनली थिंग इज प्रॉमिस विथ योरसेल्फ। अपने से आपको वादा करना पड़ेगा, कुछ भी हो जाए, लेट कम व्हाट मे, this return and income on investment I will simply reinvest, I will not use it। और अगर आपने ऐसा कर लिया, और करना ही चाहिए प्रीति जी, अगर ऐसा कर लिया, फिर कहता हूं देयर इज नो ऑप्शन, आपको करना ही चाहिए। then after down the line, after 15-20 years, you will be happily surprised that your return portion has become much bigger than your original investment। आपका जो रिटर्न पोर्शन है वो बहुत बड़ा हो जाएगा, आपका रिटर्न पोर्शन इतना बड़ा हो जाएगा कि आप इसकी आज आप कल्पना भी नहीं कर सकते। So please do understand the importance of power of compounding in your investment, and please follow strictly religiously the power of compounding in your investment। और अगर ऐसा आपने कर लिया, फिर दोबारा कहता हूं, आपकी जिंदगी में पैसे की कमी नहीं रहेगी, रीजनेबल पैसा आपकी जिंदगी में होगा। मैं कभी नहीं कहता कि आप मुकेश अंबानी बन जाएंगे, बहुत बड़े आदमी बन जाएंगे, लेकिन जितनी आपकी पैसे की आवश्यकता है आपके नीड्स के लिए, आपके फैमिली ऑब्लिगेशंस के लिए, आपके रीजनेबल डिजायर्स के लिए, दैट मनी यू विल हैव इन योर लाइफ। नाउ लास्टली फॉर नेक्स्ट 10 मिनट्स प्रीति जी, I will tell you where to invest, कहां पैसा हम लगा सकते हैं, because that is equally important। और जो सबसे पहली कैटेगरी जहां हम पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं वो है गवर्नमेंट की स्मॉल सेविंग स्कीम्स। भारत सरकार ने कुछ स्मॉल सेविंग स्कीम्स बना रखी हैं जो हमारे लिए बड़ी अच्छी है, इम्पोर्टेंट है, और आपको समझना चाहिए। और सबसे पहली जो भारत सरकार की जो अच्छी स्कीम है, जो मुझे लगती है प्रीति जी, उसका नाम है पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट, पीपीएफ। प्रीति जी, आपने पीपीएफ में अकाउंट खुलवाया नहीं खुलवाया? नहीं सर, फिलहाल तो नहीं है, बट प्लानिंग है। आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो हेलो, अब आ रही है आवाज? थोड़ी स्लो, बहुत डिम आ रही है। हेलो, या हाँ सर, अभी तो नहीं है पीपीएफ, बट आपने बहुत बड़ी गलती की है। मैं आपको ही नहीं, जो भी पार्टिसिपेंट यहाँ आप 40 से 45 से नीचे हैं, उन सबको कहना चाहता हूं, जल्दी से जल्दी एक अपना पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट पीपीएफ खुलवा लीजिए। ये किसी बैंक में खोला जा सकता है, जहां आपका बैंक में अकाउंट है वहां भी खोला जा सकता है, या किसी पोस्ट ऑफिस में भी खोला जा सकता है। इसमें एक साल में आपको कम से कम 500 रुपए जमा कराने पड़ेंगे, और ज्यादा से ज्यादा एक साल में आप 1.5 लाख रुपए जमा करा सकते हैं। कृपया करके सब लोगों को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जो मिडिल क्लास सैलरी क्लास फैमिलीज के लोग हैं, अपना पीपीएफ अकाउंट जरूर खुलवाइए, पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट जरूर खुलवाइए। ये बहुत अच्छा अकाउंट है, इसमें इनकम टैक्स में रिबेट भी मिलती है, और आज भी 8% इंटरेस्ट आपको हर साल मिलता है। कोई रिस्क नहीं है, भारत सरकार की सारी योजनाओं में कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट आपको गारंटी दे रही है। और ये योजना 15 साल की है, लेकिन 15 साल बाद भी प्रीति जी आपको बंद नहीं करना है। हर 5-5 साल इसको बढ़ाते रहिए, जब तक आपको पैसे की आवश्यकता नहीं हो। तो पहली बात मैं सबको कहना चाहता हूं, हर आदमी का पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट होना चाहिए, मिडिल क्लास सैलरी क्लास आदमी का। और जो स्टूडेंट है उनको भी कहना चाहता हूं, जब वो पैसा कमाने लगे, व्हेन दे स्टार्ट अर्निंग, दे मस्ट ओपन देयर अकाउंट इन द फर्स्ट 6 months। पहले जल्दी से जल्दी अपना एक पीपीएफ अकाउंट जरूर खोल लेना चाहिए। उसके बाद में दूसरी योजना भारत सरकार की है, मैं सिर्फ नाम बताऊंगा, समय नहीं है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, एनएससी। आप नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए, और मैं बाकी उसमें अपना डिटेल, उसमें गूगल में जाके आप इसकी डिटेल मालूम कर सकते हैं। तो दूसरी योजना का नाम है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। तीसरी योजना का नाम है किसान विकास पत्रा।
किसान विकास पत्रा, ये भारत सरकार की योजना है, बता रहा हूं मैं, कोई प्राइवेट योजना नहीं है अभी। चौथी योजना का नाम है, रिजर्व बैंक भी समय समय पर बॉन्ड इशू करता है। RBI also keep issuing bonds, tax-free bond and taxable bonds, and you can invest in those bonds. RBI bonds are very good and very safer and reasonable return. आज भी इसका रेट ऑफ रिटर्न 7.35% है। उसके बाद में भारत सरकार के बड़े बड़े संस्थान हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग, ONGC, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, रेलवेज, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, NTPC, कोल इंडिया, around 200 plus big institutions are there. They also get loan from public. वहां पैसा लगाइए, वहां भी रिटर्न करीब करीब आज 8% का आ रहा है, दैट इज नॉट ए बैड रिटर्न। तो वहां भी कुछ पैसा लगाइए। ये सारी जो मैंने योजनाएं बताई, ये भारत सरकार की योजना है। इनमें सबसे बड़ा फायदा ये है, नो रिस्क एट ऑल। जो आपको गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया है वो आपको रिटर्न इंटरेस्ट भी देगी। जब आपकी स्कीम मैच्योर हो जाएगी, आपका जो मैच्योर अमाउंट है वो भी आपको मिलेगा। तो भारत सरकार की योजनाओं में कुछ पैसा अपना 15-20% टोटल इन्वेस्टमेंट का जरूर लगाइए। उसके बाद में अब सब में रिस्क है, ये बात पहली है। अब जो मैं बता रहा हूं उनमें सब में रिस्क है, कहीं ज्यादा रिस्क है, कहीं कम रिस्क है, वो अलग बात है, लेकिन रिस्क है। और रिस्क पहली जो योजना है, भारत सरकार की दो योजना की, एक योजना और बता दूं मैं आपको, जिनके घर में बिटियाएं हैं, दोज हु हैव गॉट गर्ल चाइल्ड इन योर फैमिली। प्रीति जी, अगर आपके भी घर में बिटियाएं हैं, आपके भाई की, बहन की, आपकी और भी रिश्तेदार किसी की जिनके घर में बिटियाएं हैं, गर्ल चाइल्ड है, उसकी उम्र 10 साल से कम होनी चाहिए। 10 साल के बाद ये अकाउंट नहीं खुलता है। एक गवर्नमेंट की स्कीम है ओनली फॉर गर्ल चाइल्ड, दैट इज कॉल्ड सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना। तो प्लीज डू ओपन ए अकाउंट ऑफ दैट गर्ल, or if you got more than one girl in your family, you can open maximum 2 girl account in this सुकन्या समृद्धि योजना। इसमें अकाउंट खोलिए, बहुत अच्छी योजना है। ये बिटिया की पढ़ाई के लिए और बिटिया की शादी के लिए स्पेसिफिकली डिजाइन की गई है। When girl become 18 years, you can withdraw 50% of the amount for her higher education, and when she attains the age of 21 year, you can close the account, and whenever you get her marriage done, you can withdraw the remaining amount and close the account. So this is a very good scheme for the girl child, सुकन्या समृद्धि योजना। तो मैं बात कर रहा था जो वहां, अब जो दूसरी योजनाएं उनमें रिस्क है। The second option is property and real estate where you can invest, but the risk is there. And for real estate and property, you will need huge amount, बहुत पैसा चाहिए उसके लिए। इसलिए आप ध्यान रखिए कि प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसमें रिस्क है। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन दैट लाइन, so I will just mention the category. I leave it to you to decide how much money you want to invest in property invest. Then third category is gold where you can invest. हम और सोने में हिस्टोरिकली इंडियन मिडिल क्लास फैमिलीज आर इन्वेस्टिंग ह्यूजली। हम ज्वेलरी में, हमारी पर्टिकुलर जो फीमेल पार्टिसिपेंट्स हैं, they always feel happy when they purchase jewelry, when they get gold. But my dear friends, purchasing jewelry and purchasing gold in physical form is not a good proposition now. ये अच्छा बात नहीं है, क्योंकि अगर आप ज्वेलरी लेते हैं, वापस बेचने जाते हैं, अगर आप बेचते हैं, the jeweler will cut 35 to 40% as making charges. And keeping gold at home is also dangerous. And thirdly, if you keep the gold jewelry in locker, you will have to pay annual charges of that locker. So it is a costly affair. That is why government of India has come out with a very good scheme for gold. आप भी सबको कहता हूं, आप नोट कर लीजिए, इस स्कीम का नाम बता रहा हूं मैं। भारत सरकार की बहुत अच्छी योजना एक भारत सरकार लेके आई है आप सबके लिए, और उस योजना का नाम है सोवरीन गोल्ड बॉन्ड स्कीम। लतिका मैम, आप भी नोट कर लीजिए, सोवरीन गोल्ड बॉन्ड स्कीम।
Very good scheme of the government, not no private scheme, Government of India scheme. Sovereign, SOVEREIGN, sovereign gold bond. और जो स्टूडेंट है वो घर जाके अपनी मदर को, अपनी सिस्टर को, अपनी भाभी को इस योजना के बारे में जरूर बताएं। बहुत अच्छी योजना है भारत सरकार की। इसमें आप इसका अकाउंट कहीं भी खोल सकते हैं, बैंक में खोल सकते हैं, पोस्ट ऑफिस में खोल सकते हैं। इस योजना का टेन्योर 8 ईयर है, 8 साल है, 8 ईयर्स है। इसमें आप मिनिमम 1 ग्राम सोने की कीमत इन्वेस्ट कर सकते हैं लतिका मैम, और ज्यादा से ज्यादा 4 किलोग्राम सोने की जो प्राइस है वो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको फिजिकल गोल्ड नहीं दिया जाएगा, गवर्नमेंट आपको एक सर्टिफिकेट इशू करेगी कि इतना सोना आपका हमारे पास रखा हुआ है। और जिसमें जो इन्वेस्टमेंट होता है वो जो सोने की प्राइस चल रही है, प्रेजेंट प्राइस, उसके बेस पे ही होता है। और इसमें 2 फायदे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको दे रही है। पहला फायदा यह है लतिका मैम, जितना पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे उस पर 2.5% इंटरेस्ट आपको गारंटेड मिलेगा। जैसे अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया तो हर साल 8 साल तक लगातार आपको 2,500 रुपया महीना आपको इंटरेस्ट मिलेगा। प्लस जो सबसे बड़ा फायदा इसमें है, मान लीजिए आज सोने की कीमत 60,000 है 10 ग्राम, और लतिका मैम after 8 years, suppose the gold price goes to 80,000 10 gram, then Government of India will return you 80,000. This 80,000 will be returned to you, so the whatever is appreciation in the gold price will also be shared with you. So it is a very good scheme of the Government of India. Please get the details from the Google and websites, and whenever a scheme is not always open, it opens and closes for a particular period. Next tranche is coming very soon. Keep an eye on the advertisement of the Government of India or RBI and invest that scheme. It is a very good scheme of the Government of India. After that, share bazaar is also an option where you can invest. But my dear friends, share bazaar is riskier. Risk is there, high risk is there. Because share bazaar is purely knowledge-based market. Those who don't have knowledge of the market, please don't invest in share bazaar directly. Please don't invest in security market directly when you don't have knowledge. This is my opinion after serving 20 years in SEBI. I am of the firm opinion that you must not invest directly in security market unless and until you have knowledge of the market, and never invest in security market on the so-called tips and classified information. कभी भी दूसरे के कहने पर शेयर बाजार में पैसा मत लगाना। अगर आपको नॉलेज नहीं है, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप इनडायरेक्ट पैसा लगाइए। उसका तरीका है म्यूचुअल फंड. Mutual fund is an indirect way of investing in not only in security market but also in beyond security market. So in mutual fund, you are not directly investing. You are giving your money to the fund manager, those who are experts. तो म्यूचुअल फंड में आप अपना पैसा डायरेक्ट नहीं लगा रहे हैं, अपना पैसा एक्सपर्ट्स को दे रहे हैं. एक्सपर्ट्स को क्यों दे रहे हैं? इसलिए दे रहे हैं, पहली बात, मुझे नॉलेज नहीं है, एंड 2000 एक्सपर्ट्स, उनके पास वो एक्सपर्ट है, उन्हें मार्केट की नॉलेज है, मार्केट की समझ है, मार्केट की पकड़ है. दूसरी बात, मेरे पास टाइम नहीं है. आई हैव गॉट ए फुल टाइम जॉब, देन फैमिली आल्सो, so I don't have time to manage my investment. That is why I am giving my money to the experts. You manage my money. I don't have time, but you have 24 hours to manage the money. You are deploying those experts for managing your money. And third thing is, I don't have experience of my investment management, but they people are experts in management of your investment. That is why I am giving my money to the experts. I am giving, but the purpose is very simple. Purpose is very clear. I am giving my money with the sole purpose that you please invest my money as per a scheme in which I am investing,
and generate and return maximum return to me. ज्यादा से ज्यादा मेरे पैसे से पैसा बनाइए और मुझे पैसा वापस दीजिए, बनाकर पैसा दीजिए, रिटर्न वापस कीजिए, मेरा पैसा भी वापस कीजिए जब मुझे जरूरत हो। तो म्यूचुअल फंड एक तरीका है जहां आपको नॉलेज के बिना भी आप पैसा बना सकते हैं। ये 3 कैटेगरी की ब्रॉड स्कीम होती है, समय नहीं है। नेक्स्ट टाइम इफ यू आर इंटरेस्टेड वी विल हैव ए डेडिकेटेड सेशन ऑन म्यूचुअल फंड of around 1-2 hours. There are 3 broad categories of mutual fund schemes. One is equity fund. In equity fund, your money will be invested into the equity share of the corporate companies. Risk is very high. Very clear. In equity fund, risk is very high. So those who don't want to take high risk must not invest in equity fund. जो ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते उनको कभी भी इक्विटी फंड में पैसा नहीं लगाना चाहिए। लेकिन जो यंग लोग हैं, ज्यादातर जो लोग हैं, यंग लोगों को पैसा इक्विटी फंड में लगाना चाहिए। क्यों? कि वो रिस्क ले सकते हैं, उनके पास टाइम है अभी 30-40 इयर्स का। वो लग्जरी मेरे पास नहीं है, दैट लग्जरी आई डोंट हैव, बट दोज हु आर यंग कैन इन्वेस्ट फॉर लॉन्गर पीरियड। तो अगर कोई गलती भी हो जाती है तो गलती ठीक करके वो आगे बढ़ेंगे। दैट इज व्हाई फॉर यंग पीपुल इक्विटी फंड आर रिलेटिवली बेटर फंड्स टू इन्वेस्ट। लेकिन आपको कम से कम 5-10 सालों के लिए पैसा लगाना है। ये नहीं आज पैसा लगाया कल निकाल लिया। अगर ऐसा है तो फिर कभी पैसा मत लगाइए। You must have a longer horizon of minimum 5 year, 10 year, 15 years. और जिन्होंने भी लंबे टाइम के लिए पैसा लगाया है, अच्छा पैसा उन्होंने बनाया है। तो always have you, those who are young must have a horizon of 10, 15, 20, 30 years. और अगर आपने लगातार पैसा लगाया, थोड़ा थोड़ा पैसा लगाया, उसे SIP बोलते हैं। SIP का मतलब सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो थोड़ा थोड़ा पैसा भी आपने लगातार लगाया, लंबे समय के लिए लगाया, फॉर ए लॉन्गर पीरियड, यू विल गेट वेरी गुड रिटर्न डाउन द लाइन आफ्टर 10, 15, 20 इयर्स। इसलिए इन म्यूचुअल फंड में जो मिडिल क्लास, सैलरी क्लास लोग हैं, कृपया करके SIP स्टार्ट कीजिए। छोटा छोटा पैसा इन्वेस्ट कीजिए। मिनिमम अमाउंट ऑफ SIP इज 500 रुपीज, मैक्सिमम देयर इज नो लिमिट। थोड़ा थोड़ा पैसा लगाना चालू कीजिए, लगातार लगाते रहिए, लंबे समय तक लगाते रहिए, यू विल गेट वेरी गुड रिटर्न। एंड आई नो लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स, particularly young ones, who have started not one SIP but multiple SIP, 3, 4, 5 SIPs, and all SIPs are target oriented. One SIP for going on vacation on foreign trip after 5 years. Second SIP for purchase of house. Third SIP for purchase of vehicle, 4-wheeler. Fourth SIP for higher education and professional education for children. बच्चों की पढ़ाई के लिए जो 25 साल बाद होनी, अभी से पैसा मैंने SIP के द्वारा पैसा लगाना चालू कर दिया। फिफ्थ SIP might be for your retirement life. अपने रिटायरमेंट की जिंदगी जीने के लिए भी पैसा लगाना चालू कर दिया। तो आप you can have multiple SIPs. You can have multiple SIP. Not 1, 2, 3, 4, 5. और फिर SIP के अमाउंट को बढ़ाते रहिए। जो आपकी, अभी आपने SIP स्टार्ट किया, मान लीजिए 1000 रुपया हर महीना आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगले साल आपका इंक्रीमेंट लगेगा, सैलरी बढ़ेगी, 1000 का आप 1200 कर सकते हैं। यू कैन मेक इट 1200, यू कैन मेक इट 1500. So that is why I want to encourage all of you, please think of starting SIP at the young stage, because you will have longer period. You will have period of 15, 20 years. That is why I encourage youngsters to start investing right from the first month when they start earning. Please do think of investing at the early stage and continue investing for longer period. More the period will be, better and higher will be the return. So please think of on those lines. I don't have time, otherwise I would have given much more details about mutual funds. Last 2 things I want to tell all of you. Firstly, since the program is in West Bengal,
There is a menace in our country, including in West Bengal, that is Ponzi scheme, chit fund and committees. My dear friend, Ponzi scheme, chit fund and committees are all fraud. आपने शारदा का नाम जरूर सुना होगा वेस्ट बंगाल में, रोज वैली का नाम सुना होगा. लॉट ऑफ अदर स्कीम्स आर देयर. दे लूटेड योर मनी. उन्होंने आपका पैसा लूटा है. दे आर फ्रॉड्स. लेकिन आपने पैसा क्यों लगाया? ओनली बिकॉज ऑफ ग्रीड. लालच में आकर आपने पैसा लगा दिया. कभी भी लालच में आकर पोंजी स्कीम, चिट फंड कमेटी में पैसा नहीं लगाना है. I am using very harsh word for Ponzi scheme, chit fund, because lakhs of people have lost their money. Lakhs of people have lost their money. लाखों करोड़ों रुपया लोगों का डूब गया है. लाखों करोड़ रुपया लोगों का डूब गया है. क्यों? उन्होंने लालच में आकर पोंजी स्कीम, चिट फंड कमेटी में पैसा लगाया. इसलिए एक बात मैं बहुत जोर देकर सबको कह रहा हूं, विद फोल्डेड हैंड्स, सबको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, कभी भी लालच में आकर पोंजी स्कीम, चिट फंड कमेटी में पैसा मत लगाना. अगर आपको कोई नॉलेज नहीं है, कोई बात नहीं है. अपना पैसा बैंक में रखिए, अपना पैसा पोस्ट ऑफिस में रखिए, पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स में लगाइए, बैंक की स्कीम्स में लगाइए. थोड़ी सी नॉलेज है तो एसआईपी चालू कीजिए, आपका पैसा रिलेटिवली सेफ रहेगा. लेकिन अगर पोंजी स्कीम, चिट फंड कमेटियों में लगा दिया, आपका पैसा 100% डूबेगा. ये मैं आपको आज लिख के दे रहा हूं आपको, क्योंकि उनके पास कोई बिजनेस मॉडल नहीं है. वो लालच देते हैं आपको, आपका पैसा डबल कर देंगे 4 साल में. वो कभी नहीं कर पाएंगे. लास्ट थिंग, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू टेल ऑल ऑफ यू, प्रॉस्पेरिटी इज योर राइट. समृद्धि हमारा अधिकार है. और फिर कहता हूं, समृद्धि का मतलब नहीं है मुकेश अंबानी बनना. समृद्धि का मतलब ये है मेरी बेसिक नीड्स पूरी हो, मेरे फैमिली ऑब्लिगेशंस मेरे पूरे हो, मेरी रीजनेबल इच्छाएं पूरी हो. समृद्धि हमारा अधिकार है. समृद्धि हमारा अधिकार है. ये इट इज नॉट ए लक एट ऑल. अनफॉर्चुनेटली वी इंडियंस हैव बीन टेलिंग राइट फ्रॉम बर्थ, भाग्य ही सब कुछ है. लक इज नथिंग. Just forgive this thought. Luck is nothing, only your effort. केवल आपकी मेहनत, आपका प्रयास आपको अच्छा अपनी जिंदगी आपके अच्छी जिंदगी के लिए आपको पैसा दे सकता है. So think of investment, think of effort in making investment. अपना प्रयास कीजिए, भाग्य के भरोसे मत रहिए. भाग्य कुछ भी नहीं है. हाँ, एक बात और कहना चाहता हूं. There may be some person who may think that I might have born into a poor family. कुछ लोगों को शायद ऐसा लगता है कि मेरे परिवार की स्थिति अच्छी नहीं थी. I am not from a rich family. उनको एक बात मैं बड़ी कड़वी कह देना चाहता हूं. I don't know whether they will listen to me or not, but I am very clear. Birth in a poor family is not a curse at all. गरीब घर में पैदा होना अभिशाप नहीं है, बुरी बात नहीं है. भूल जाइए उसको. जहां भी आप पैदा हुए अच्छे हुए हैं, खत्म बात. लेकिन गरीब होकर जिंदा रहना और गरीब होकर मरना अभिशाप है. Birth in a poor family is not a curse at all, but living as a poor and die as a poor is a curse, and we all can avoid that curse if we start working right from the day we start earning on our savings and investment. And if you do it, I can give you a firm assurance that you will all have reasonable life in your life, reasonable money in your life. And with that wish and with that good wishes, thank you very much. God bless you all. Now I will take questions. Anybody has questions, just raise the hand. If anyone of you wants to ask something to sir, you can raise your hand one by one. Yes. Has anybody got any question in mind? Just raise their hand. We will unmute them. No questions?
I welcome questions from your side. Please to ask question. Few of you were raising your hand while the session was on. You can ask them now. Priti, your voice is very dim now. Earlier it was very good. Hello? Your Is voice it is clear now? very dim. Is it clear now, sir? Relatively clear, relatively clear. Okay. You can ask your questions to sir. Please raise your hand if you want to ask anything to sir. I welcome you to ask the questions. You can also write them in the chat box if you don't want to speak. We will convey it to sir. Okay, Priti, then close it. I request all the participants to fill up the form correctly to get the e-certificate at their mail ID today or by tomorrow. I also thank our today's speaker, Sri Suryakant Sharma, on behalf of Divine Bliss Foundation, Kolkata, for the wonderful session and this informative session for all our participants. And I also thank all the participants for actively taking part in our today's webinar. Thank you. I am also thankful on my behalf and on behalf of MFI for giving me opportunity to the Divine Foundation, and we will definitely in future also, whenever you feel a need of such session, we will keep doing it. And thank you very much for all the participants. And a special thank, of course, goes to Mr. Sabjar Ahmed, who has worked hard for this program. Mr. Sabjar, thank you very much. And God bless you all. Thank you very much.